everyone, this is the class 8th GK. So students, today we start chapter 7 Indian Politics. So इस चैप्टर में हम इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अलग अलग चीज़ें राज्यसभा लोकसभा के बारे में दिया हुआ है। तो पहला नंबर है आपका द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इज़ द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड नंबर में आपका लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज 25 ईयर्स, है ना। प्राइम मिनिस्टर के लिए मिनिमम एज रिक्वायर्ड क्या होती है, 25 ईयर्स होती है। द वाइस प्रेसिडेंट इन द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। The minimum age limit prescribed for the office of the president is 35 years. Sixth number, the speaker is regarded as the custodian of the Lok Sabha. The Attorney General of India is the chief legal advisor of Government of India. Eighth number, the Prime Minister is appointed by the President and recognized as the leader of majority party of two houses of the Parliament of India. Ninth number, the maximum strength of the Lok Sabha advised by the Constitution is 552. 10th number, Sardar Vallabhbhai Patel is also known as the Iron Man of India because he succeeded in bringing all the rulers together by merging their states into the Indian unions. 11th number आपका, the maximum strength of the Rajya Sabha advised by the Constitution is 250. The Election Commission of India allocated election chambers of political parties in India. The joint session of Lok Sabha and Rajya Sabha is chaired by Speaker. The first woman Speaker of the Parliament of India was Meera Kumar. 15 number, the President of India submitted her resignation to the Vice President. The concept of 5-year plan in the India Constitution was borrowed from USSR. In the absence of Vice President and the President, the Chief Justice of India served as the acting President of India. 18 number, the Lok Sabha was constituted for the first time of April 1952. तो स्टूडेंट आपका 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसको फिल कर लीजिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा अच्छे से, है ना, अंडरस्टैंड करके। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है आपका, बस पॉलिटिकल्स के बारे में दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है आपका, है ना। फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन है, कितनी एज में आपका प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है ना। अगर प्रेसिडेंट आपको रेजिग्नेशन देना चाहे किसी को तो किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट को देगा। आपका नेक्स्ट चैप्टर है इंडिया में फर्स्ट इन इंडिया। 8th चैप्टर है द स्टेट रिचेस इन डायमंड मध्य प्रदेश, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैशू नट महाराष्ट्र, the largest planetarium Birla Planetarium Kolkata. 4th number, the longest bridge Bhupen Hazarika Setu. 5th number, the largest producer of rice Bengal. 6th number, the largest producer of salt Gujarat. 7th number, the first tobacco free district Kottayam Kerala. 8th number, the highest brick minaret Qutub Minar Delhi. The largest corridor Rameshwaram Temple. The highest post office Sikkim Himachal Pradesh. The largest delta Sundarban. The first metro rail Kolkata Metro. The first nuclear reactor Apsara Mumbai. The first expressway Mumbai Pune Expressway. The longest railway tunnel Pir Panjal Tunnel Jammu and Kashmir. तो स्टूडेंट्स ये आपका 8th चैप्टर भी है, इसको भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इजी है, इसमें आप लोग उसको लर्न कर सकते हैं। फिर 9th नंबर चैप्टर है आपका इंडियन आर्म्ड फोर्स। इस चैप्टर में आप लोग इंडियन आर्म फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इंडियन नेवी, इसमें आपका फ्लैग दिया हुआ है। तो फर्स्ट फ्लैग का सिंबल आपका इंडियन नेवी का है, सेकंड इंडियन नेवी, थर्ड आपका इंडियन एयर फोर्स का हो गया। फिर पिक द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ करेक्ट आंसर्स दिए हुए हैं, आपका ब्लैंक्स करना है। फर्स्ट में होगा सैनिक स्कूल, प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर एंट्री इनटू द नेशनल डिफेंस एकेडमी। सेकेंड में होगा खेड़ा कावतसाला, द नेशनल डिफेंस एकेडमी इज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है आपका, खेड़ा कावतसाला में। थर्ड में होगा आपका देहरादून, फोर्थ में हैदराबाद, फिफ्थ में एजीमाला, सिक्स्थ में द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स इज न्यू दिल्ली। 7th नंबर, द हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड इज परमवीर चक्र। 8th नंबर, द हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड इज अशोका चक्र। 9th नंबर, द मेरी टाइम पैरामिलिट्री फोर्स क्रिएटेड टू गार्ड इंडिया वास्ट कोस्ट लाइन इज इंडिया कोस्ट अवार्ड्स, इंडिया कोस्ट गार्ड्स होगा, सॉरी। 10th नंबर, नेशनल कैडेट कॉर्प्स इज एंगेज्ड इन ग्रूमिंग द यूथ ऑफ द कंट्री इनटू डिसिप्लिन एंड पैट्रियोटिक सिटीजन। 11th नंबर, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स असिस्ट इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड कॉन्ट्रुएंसी थ्रू आउट द कंट्री। द मोटो ऑफ इंडियन एयर फोर्स इज न स्पर्शम दीपम, मीन्स टच द स्काई विथ ग्लोरी। Indian Army Force is headed by the General. Indian Navy is headed by the Admiral. Indian Air Force is headed by the Air Chief Marshal. इसमें आपका नीचे
दिया हुआ है द नेशनल वॉर मेमोरियल सिचुएटेड इन इंडिया गेट। नेशनल वॉर मेमोरियल जो है आपका इंडिया गेट के कॉम्प्लेक्स में सिचुएटेड है। न्यू दिल्ली पेज ट्रिब्यूट टू इंडियन, यहाँ पे क्या नई दिल्ली में ये ट्रिब्यूट ये दिया गया है इंडियन सोल्जर्स को हु मेड द अल्टीमेट सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ देयर मदरलैंड, जिन्होंने अपने लिए अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, सब कुछ त्याग कर दिया। ये आपका पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट दैट्स ऑल, आपके 7, 8, 9 लेसन कंप्लीट हो गए हैं। तो इसको आप लोग फिल कर लीजिएगा, लर्न भी करते रहिए साथ में, है ना। जीके में आपका 1 से लेकर पूरा 17 लेसन तक आने वाला है। 1 to 17 आपका जीके का सिलेबस है क्वार्टरली एग्जाम का। दैट्स व्हाई आई टेक 3 लेसन इन 1 वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।